वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Good afternoon, everybody. Today is a great day. Why it is a great day? Because maybe the sports day is celebrated online in the history of the mankind for the first time. And you know who is the culprit. Culprit is COVID-19. But we have got the great opportunity, wonderful opportunity to explore all our resources, to try all our whatever things that are there at our disposal to arrange this program online. So, Honorable Chief Guest Piyush Kumar Dubey, the coach of the Indian hockey team, most respected principal Mrs. Shabana Khan of Kendriya Vidyalaya Ganesh Khind Pune, and respected Vice Principal Mr. Kanaram Chaudhary of Kendriya Vidyalaya Ganesh Khind Pune, all the learned teachers and dear students. Now you have got the idea that we are celebrating National Sports Day. National Sports Day is celebrated in the memory, it is celebrated as the birthday of the hockey legend Major Dhyan Chand. And I must share some incidents of his life with you. Major Dhyan Chand, whose father worked in then British Army, or rather you would say Indian Army under the British control. And he was initially interested in wrestling. But anyhow, he got used to playing hockey, and then his passion for the hockey grew to such an extent that he used to practice hockey during the evening also, in the moonlight also. And that is why his initial name, Dhyan Singh, it fell apart and he got the new name, Dhyan Chandra. And slowly that Chandra became Dhyan Chand. Initially he joined the Indian Army as a sepoy, as a soldier. But because of his sports talent, he grew to the position of a major. And children, he was a wizard. He was such a great legend in hockey that once another cricket legend, Sir Don Bradman, commented that Mr. Dhyan Chand hits the goal the way I score runs. There are 1000 goals to Major Dhyan Chand's credit throughout his life in all the national and international events. Now, in order to move forward, may I now request our most respected principal, ma'am, Mrs. Shabana Khan, to present the welcome speech and also motivate the students and enlighten the students on the importance of sport, games and sports in the school, importance of National Sports Day in our school, and also to present her speech. Good afternoon to one and all. Most respected Shri Piyush Kumar Dubey ji, coach, Indian hockey team for men, and chief guest for today's program, dear children, parents and staff members. I extend my warm welcome to all of you in this online program
for celebrating National Sports Day. Dear children, we all know the importance of sports in our life. In fact, we all desperately wait for only one period in the whole day, and that is games. Dear children, I request all of you to watch the whole live program. It will be nearly about 1 to 1.5 hours, and I'm very much sure after watching this program, you will definitely be highly motivated to in fact adopt sports as one of the careers. Sports is not only important as career, of course it is important, dear children, but it is very important to keep us to maintain our healthy body. As you all know that the world is facing a most difficult times, that is pandemic due to COVID-19. Now during these times it becomes even more important to maintain our body fit both mentally as well as physically. And we must accept this. To maintain this physical and mental status of our body, we must adopt sports or any physical exercise in our daily life. At last, I would like to tell my all students as well as staff members as well as parents to take a pledge that we all will adopt one or another sport in our life and will play every day and devote at least 45 minutes to 1 hour for this game, because it will not only will keep us physically fit but also mentally fit. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Shabana Khan madam. Dear viewers, as I told you earlier, Kendriya Vidyalaya Ganesh Khind Pune always shines in the arena of sports and games. And the credit goes to the able guidance of Miss Shabana Khan, the principal, and the hard work and management of our physical education teacher, Mr. Sanjay Bhukan. He also has a mastery over many things, not only sports and games, but he operates computer in a wonderfully well manner. He is a choreographer of the dances which are being orchestrated on a very huge level, not only on the stage but on the ground. And he has proved his talent by making Kendriya Vidyalaya Ganesh Khind to always stand at the top in all the sport events. So may I now request our sports teacher Mr. Sanjay Bhukan to present his views on the occasion of National Sports Day. Mr. Sanjay Bhukan, please. नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, एचएम मैडम, मेरे प्यारे शिक्षक बंधु सभी तथा मेरे प्यारे बच्चों, आज केंद्रीय विद्यालय गणेश खिंड राष्ट्रीय नेशनल खेल दिवस मनाने जा रहा है। इस दिवस का महत्व मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के एक अच्छे प्लेयर थे, उनका जन्म दिवस जो है एक नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। यह खेल दिवस पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन स्टाइल से मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण से पूरे देश डरा हुआ है। कोविड ने सबको रोक लिया है। पूरे जग में देखो, एरोप्लेन बंद हो गए, ट्रेन सारी बंद हो गई, लोगों को घर में रहना पड़ा। ये सभी हुआ है कोविड के कारण से। इसलिए हम लोग ये स्पोर्ट्स डे जो है ऑनलाइन मनाने जा रहे हैं। तो इस स्पोर्ट्स डे के दिवस पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोविड के समय हम लोगों को कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। दूसरी बात, फिट इंडिया फ्रीडम मूवमेंट क्या है। सबसे पहले मैं कोविड के बारे में बात करूंगा। कोविड के समय पर सबसे पहले आप लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों को रोज थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम रोज आधा घंटा आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें। और तीसरी बात, आप जरूरत होने पर ही घर के बाहर निकले। इस समय पूरे भारत देश में पुणे शहर, अपना जो शहर है पुणे शहर, ये सबसे ज्यादा कोविड से बाधित है। सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट पुणे जिला में है।
मगर एक बात ध्यान में रखो, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसलिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना काम करते चलना चाहिए। और एक बात, अगर आपके घर के पास आसपास में आपको पता चलेगा कोई कोविड का पेशेंट है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यस, अब मैं आपको बताऊंगा फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। फिट इंडिया मूवमेंट एक केंद्र सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति फिट रहिए। फिट रहने के लिए आप लोगों को कम से कम 60 मिनट्स का वर्कआउट होना चाहिए। बच्चों को 60 मिनट तक कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप बताओ अभी घर में कैसे कर सकते हैं? मेरा सजेशन रहेगा, आपकी जो छोटा सा स्पेस है वहां पर आपको कैसे 60 मिनट वर्कआउट करना है। आप एक जगह पर खड़े होकर आप स्पॉट जंप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल जंप कर रहा हूँ, ऐसे जंप भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके कॉरिडोर में कोई जगह है तो कॉरिडोर में आप यहाँ से उस तरह तक दौड़ सकते हो, वहां से यहाँ पर आ सकते हो। तीसरी बात, अगर आपके सोसाइटी में आप जहाँ रहते हो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए अगर स्पेस है, आपका कोई पार्क है, पार्क में कोई भीड़ नहीं है, वहां पर जाकर आप जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग ये कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप घर में बैठ के भी तबाटा वर्कआउट कर सकते हो, आप जुम्बा डांस कर सकते हो, एप्स कर सकते हो। ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस दिखाई देंगे, मिलेंगे आपको। वीडियो को देख के आपका वर्कआउट कर सकते हो। साथ साथ ही बच्चों के लिए मैंने तबाटा वर्कआउट का वीडियो मैंने अपलोड किया है, मेरा खुद का वीडियो बना के डाला है। साथ ही साथ में एप्स कैसे करना चाहिए उसका भी वीडियो डाला है। सुबह सुबह मैं रोज 5, 6, 7, 8 क्लास के लिए जुम्बा डांस और फ्लोर एरोबिक का आयोजन करता हूँ। मेरे साथ कम से कम 50-60 बच्चे रोज मेरे साथ आते हैं। बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कहना है नहीं 1 घंटा, आप आधा घंटा तो अपने शरीर के लिए दे दो, उतनी एक्सरसाइज करो। और एक बात, लॉकडाउन के कारण से आप लोग सभी बच्चे सभी घर में बैठे हैं। इस घर में बैठे के कारण क्या हुआ है, आपको कुछ बाहर जाना नहीं पड़ता है, आपकी मूवमेंट कम होती है, एक्सरसाइज कम होती है, इसी कारण से ओबेसिटी बढ़ सकती है। यस, ये कम करने के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप कम से कम एक आधा घंटा रोज का वर्कआउट अपने शरीर के लिए करो। यस, आप करोगे, आपके साथ आपके पेरेंट्स करेंगे, आपका छोटा भाई छोटी बहन है वो भी करेंगे और अपना फिटनेस बना रहेगा। साथ साथ में अपने घर वालों को भी फिटनेस में उसको जोड़ लीजिए। आज के दिन के बारे में मैं विशेष बताना चाहूंगा। मेजर ध्यानचंद जो थे वो इलाहाबाद के रहने वाले थे और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीयूष कुमार दुबे, ये भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और एक बार पीयूष कुमार जी जो थे वो एक केंद्रीय विद्यालय में एज ए कोच काम कर चुके हैं और आज की स्थिति में उस साई में इंडियन मेंस टीम के मेन कोच है। तीसरी बात, मजा की बात कि हमारे प्रिंसिपल मैडम भी इलाहाबाद की रहने वाली है। यह सब योगा योग की बात है कि तीनों नाम इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, घर में रहो, जरूरत पड़ने के बाद ही घर से बाहर निकलिए, रोज व्यायाम करें और अपना खुद का ख्याल रखें। ध्यान दें। धन्यवाद। Thank you very much, Sanjay Bhukan sir. Dear students, in our Kendriya Vidyalaya, there is one teacher who is an excellent teacher. He is a techno-savvy man. He is there to help each and everybody. And not only that, he is also a sportsman. He is a badminton champion for Mumbai region. And I'm very happy to invite Mr. Anand K, PGT Biotech, to present his speech on the importance of games and sport. He is a worthy man to present his speech because he is not only
fit and fine, but the champion in his game, that is badminton in the Mumbai region. So now, once again, I invite Mr. Anand to present his speech, please. Respected Chief Guest Shri Piyush Dubeji, respected Principal Madam, Vice Principal Sir, HM Madam, my dear colleagues, students and parents, a very good morning to you all. Today, on the eve of this National Sports Day, I welcome you all to Kendriya Vidyalaya Ganesh Kind. As we all know, this day is celebrated to memorize one of the legendary hockey players of India, Major Dhyan Chand. Under his leadership, India won 3 Olympic gold medals. That was the golden era of Indian hockey. He was really a magician. He is known as hockey magician. He scored 33 goals in 12 matches in Olympics and over 500 goals in his entire career. In the 1936 Olympics, Dhyan Chand displayed unbelievable skills with his hockey stick that a German newspaper carried a banner headline that the Olympic complex now has a magic show too. On the next day, various posters were displayed all over the Berlin, which showed that visit hockey stadium to watch the Indian magician Dhyan Chand. There is also a legendary story saying that his skills were so good and godly that in one instance, his opponent went on to physically check his hockey stick if there is a special glue which sticked the ball to his stick. He was such a legendary hockey player of India. I am proud to memorize Major Dhyan Chand on this occasion. Friends, we are now in a situation where we all are locked under our home due to a pandemic COVID-19. I would say the best medicine to prevent COVID-19 is to stay healthy and maintain your physical fitness. My personal opinion is that if you keep yourself healthy, you can get rid of 99% of diseases which are very common nowadays. You know, if you are keeping one game as a part of your life, that game will improve your skill, your concentration, as well as your mental health. Suppose if we play a game, at that point of time, we concentrate only on game. We forget our worries, we forget all our other thoughts. That concentration will help you in your studies, in your life, and even in your daily activities. When we play a game, when we play a match, we are getting entire satisfaction. No matter we lose or win, but when we play, our entire energy, our entire body is focused on that particular match. That gives you immense pleasure, that leave your worries, and which will improve your physical fitness too. So my request to you all, to keep yourself healthy, try to keep any one of the sports activity as a part of your life, which will take you to a healthy person. If each and everybody is healthy, our nation is healthy. So on this eve of Ganeshotsav, I pray to Almighty, we all will fight together, come over this pandemic situation, and we will build a strong, healthy, happy nation. Jai Hind. Thank you. I must share
an unbelievable incident in the life of our hockey legend, Major Dhyan Chand. Dear viewers, in the year 1936, when then Germany and India clashed in the Olympic match in Berlin for the hockey games in the Olympics, and Adolf Hitler, he witnessed that match. The Führer, that means Adolf Hitler, the Chancellor of Germany then, who expected his team to win, but it was only and only because of the magic of Major Dhyan Chand that the German team was hopelessly defeated. Till the interval, India was leading. India was 1 and Germany was 0. But when the match finished, India was 7 and Germany was 0. And that was the charisma of the one-man army, and I would say one-man hockey team led by Major Dhyan Chand. I have to add more here. The next day, Adolf Hitler invited Dhyan Chand to his office, and he asked him in what capacity he worked in the Indian army then. He frankly told the Führer that he is a soldier, and the German dictator offered him the officer's post in German army and requested him to play from the German side. But our great patriot denied it. He very politely said no. No sir, I am very happy to play as an Indian. So that is the spirit of patriotism all of us we should imbibe in our heart. Children, I told you one unbelievable incident in the life of our hockey wizard, Major Dhyan Chand. You may be interested to know many more such incidents, and I am tempted to narrate one more. In the Holland, when he was playing hockey, some of the players and then again the coaches, they suspected that there is some kind of magnet is fitted in the hockey stick of Major Dhyan Chand, but they found nothing. It was his skill, his mastery over the game that surpassed all the other hockey players at that time. So in order to know more such incidents from the life of our legend, hockey legend, I request to play the documentary on life of Major Dhyan Chand. Thank you. पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल, सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है।
उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। Children, I know majority of you have watched that movie Chak De India. There was a real hero, Kabir Khan, who was a coach for Indian hockey team for women, and under his guidance and mentorship our Indian girls hockey team excelled and they got the prize in Olympic. But children, do you want to see a real life Kabir Khan? And I must tell you, I feel really very happy to introduce you to our chief guest, Mr. Piyush Kumar Dubey, who is the coach for Indian hockey team for men's, and we are very hopeful that under his mentorship, under his guidance, and because of his hard work and the efforts of the players and the well wishes of the 1.3 billion Indians, our Indian hockey team will definitely win the gold medal in coming Olympics. So may I now request our honorable chief guest, Mr. Piyush Kumar Dubey, to address the students, to give him his message and his blessing to our students and the staff and the entire Kendriya Vidyalaya Ganesh Kind family
on the occasion of National Sports Day. Mr. Piyush Kumar Dubey, please. Thank you. किन्नाम रोदोष सखे त्वयि सर्वशक्ति आमंत्रे स्वभगवन् भगदं स्वरूपं त्रैलोक्यमेतदखिलं तव पादमूले आत्मैव हि प्रभवते न जडः कदाचित्। हे मित्र, तुम किसके लिए रोते हो? तुम स्वयं सर्वशक्तिमान हो। अपने भगवदीय स्वरूप का आवाहन करो, फिर ये तीनों लोक तुम्हारे चरणों के नीचे होंगे, क्योंकि आत्मा ही प्रभावशाली होती है, जड़ नहीं। केंद्रीय विद्यालय गणेश खिंड की परमादरणीय प्राचार्य महोदया, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मैं पीयूष कुमार दुबे, कोच भारतीय हॉकी टीम, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, वो न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वकालिक महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का जीवन बहुत ही सहज रूप से आकृष्ट करता है। और क्यों आकृष्ट करता है? क्योंकि उसकी उपलब्धियां सब लोग देखते हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के पीछे का संघर्ष बहुत कम लोग देख पाते हैं। और संभवतः यही कारण है कि उनकी उपलब्धियों के चलते ही प्रत्येक खिलाड़ी के बहुत सारे फैंस भी बनते हैं, लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि लोग उन खिलाड़ियों को तो निश्चित ही फॉलो करें, क्योंकि निश्चय ही वो समाज के प्रेरणा स्रोत होते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने लिए अपितु पूरे देश के लिए संपूर्ण विश्व में नाम किया होता है। लेकिन कितना अच्छा हो कि उस खिलाड़ी के संघर्ष को भी लोग याद रखें। और मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप, विशेषकर जो केंद्रीय विद्यालय गणेश खिंड के जो बच्चे हैं, आप आने वाले देश का भविष्य हैं। और आने वाले भविष्य में संपूर्ण विश्व में भारत की क्या छवि होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे बनेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि व्यक्ति के जो गुण हैं उनका सही आकलन कब होता है? उनका आकलन होता है जब प्रत्येक व्यक्ति को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। इमेजिन करिए कि ओलंपिक का फाइनल है और चंद सेकंड ही बचे हैं, और किसी खिलाड़ी को यह अवसर मिलता है कि वो गोल कर दे, और उसके उस गोल करने से उसके देश को गोल्ड मेडल मिल सकता है। और अगर उसने वो मिस कर दिया तो उसका देश हार जाएगा। यह है अग्नि परीक्षा। और इस अग्नि परीक्षा में जो खिलाड़ी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, जो खिलाड़ी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है, और जो खिलाड़ी उस कार्य को सही ढंग से संपादित करने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति आगे चलकर हजारों करोड़ों लोगों का प्रेरणा स्रोत होता है। अब आप कल्पना करें कि एक खिलाड़ी के अंदर ये गुण बहुत सहज रूप से डेवलप होता है। क्या कि अत्यंत दबाव में भी सहज रूप से कार्य करना, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, अपनी समान दृष्टि को बनाए रखना।
ये किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा गुण है और वो उसे एक सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। अब ये हम सीखते कैसे हैं? ये देखिए, पुस्तकों में तो निश्चित सिखाया ही जाता होगा, लेकिन एक खिलाड़ी ये सारी चीजें मैदान से सीखता है, खेल को खेल कर सीखता है। आज की खासकर जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और बहुत गलत दिशा में चले जाते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर आप बाल्यकाल से ही, इस अवस्था से ही अपने जीवन में एक खेल को जोड़ लेते हैं तो वो खेल सहज रूप से आपको कितनी सारी चीजें सिखाता है। सबसे पहली चीज सिखाता है अनुशासन। वो अनुशासन जो अध्यापकगण, माता पिता पूरे जीवन आपसे अपेक्षा करते रहते हैं कि आप अनुशासित रहें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को, अपने जीवन को संयमित रख पाना, अनुशासित रख पाना। लेकिन वो इतनी बड़ी चीज आप खेल के माध्यम से बहुत ही सहज रूप से कर पाते हैं। तो आप अनुशासन सीखते हैं, आपको समय से जागना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा, आपको संयमित भोजन करना पड़ेगा, और जो सबसे बड़ी चीज आप सीखते हैं वो सीखते हैं परिश्रम करना। खेल आपको सिखाता है कि वास्तव में परिश्रम करना क्या होता है, और सिखाता है खेल आपको लगन से कार्य करना, क्योंकि बिना लगन के आप परिश्रम कर ही नहीं पाएंगे। लगन आप में तभी पैदा होगी जब आप किसी कार्य को मन से करेंगे, जब आपको वो कार्य अपने मन से अच्छा लगेगा, तो लगन सहज रूप से आपकी उस ओर हो जाएगी। तो आप अनुशासन सीखते हैं, आप परिश्रम करना सीखते हैं, आप संयम सीखते हैं, और जो सबसे बड़ी जीवन की चीज है, जब आप हार जाते हैं तो आप हार को स्वीकार करना सीखते हैं। जब आप जीत जाते हैं तो जीत से आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आज मैं जीता हूं, लेकिन कल का पता नहीं है, कल मैं हार भी सकता हूं। तो एक जो खिलाड़ी का जीवन होता है वो हार और जीत का मिक्सचर होता है। हार और जीत किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एक सिक्के में हेड और टेल होते हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही खिलाड़ी का जो जीवन होता है वो हार और जीत से भरा हुआ होता है। तो वो जीत जाता है तो निश्चय है कि खुशी होती है, लेकिन वो इतना खुश भी नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी मुझे दोबारा खेलना है और पता नहीं मैं हार जाऊं। और अगर हार जाता है तो इतना डिप्रेस्ड भी नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे दोबारा फिर से मौका मिलेगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा। तो ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। ये केवल एक खिलाड़ी के अंदर ही गुण हो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये गुण बहुत सहज रूप से खिलाड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी डेली की प्रैक्टिस में इन चीजों को फेस करता है। आपने सुना होगा कि अध्यापक भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं कि इस चीज में मन लगाओ, इस चीज में मन लगाओ, चाहे पढ़ाई में मन लगाओ या किसी भी चीज में। लेकिन प्रायः बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मन को लगाया कैसे जाए, मन किसी चीज में लगे कैसे। देखिए, मन को नियंत्रित कर पाना या मन को कंट्रोल कर पाना एक प्रकार से असंभव है। हम क्या कर सकते हैं? मन को केवल एक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि कहावत है कि पीपर पात सरिस मन डोलत। जो मन है वो कितना चंचल है, जैसे पीपल का पत्ता। आपने हो सकता है ध्यान न दिया हो, अब कभी ध्यान दीजिएगा कि पीपल का पत्ता कभी भी स्थिर नहीं होता है, वो शिवरिंग करता रहता है, चाहे हवा चल रही हो या ना चल रही हो। ऐसे ही हमारा मन होता है, वो कहीं एक जगह स्थिर होता ही नहीं, कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। लेकिन उसको एक जगह स्थिर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे एक दिशा दी जा सकती है। और वो दिशा कैसे दी जा सकती है? आप अपने अंतर मन से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। किसी कार्य को किसी से जबरदस्ती कराना और स्वेच्छा से करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप खेलने जा रहे हैं,
अगर आप अपने मन से खेलने जा रहे हैं तो लगन स्वाभाविक रूप से आपके अंदर होगी और आपका मन निश्चित ही वहां लगेगा, वो फिर कहीं नहीं भटकेगा। अगर आपका मन पढ़ाई में लगता है तो आपका मन सहज रूप से पढ़ाई में लगेगा, आप अपने आप एकाग्रचित्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। आवश्यक नहीं कि आपको पढ़ाई ही अच्छी लगती हो, आवश्यक नहीं, हो सकता है आपका मन पेंटिंग करने में लगता हो सकता है आपका मन संगीत में लगता हो सकता है आपका मन खेल में लगता हो। आपको अपने नैसर्गिक गुण को जानने की आवश्यकता है और जब आप एक बार उसे जान लें तो ऐसा नहीं है कि केवल वही कार्य करें, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के साथ साथ चाहे खेल, चाहे संगीत, चाहे कला या पढ़ाई, उसको साथ साथ लेकर चलिए। क्योंकि मैं खेल जगत से हूं तो मेरी मान्यता है कि खेल, यदि आप किसी भी क्षेत्र से जुड़ना चाहें, अपने जीवन में एक खेल को जरूर अपनाइए और उसे सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसमें प्रोफेशनल, आप उसमें बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप उसको सहज रूप से रखिए अपने साथ। चाहे आप हॉकी खेलें, चाहे आप फुटबॉल खेलें या जो भी खेल आपको पसंद हो, लेकिन खेल को खेलें जरूर, क्योंकि वो आपको जीवन में बहुत सारी चीजें सिखाता है। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सारे बच्चों को आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप में से ही आगे चलकर कुछ बच्चे बहुत बड़े खिलाड़ी भी बनेंगे, कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ बनेगा, कुछ IAS ऑफिसर्स बनेंगे। लेकिन आप जो भी बने, मन से बने, आप अपने आप को पहचाने कि आपके अंदर कौन विराजमान है और अपने आप को पहचाने और फिर उस पर कार्य करें। तो एक बार पुनः मैं परमादरणीय प्राचार्य महोदया का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबके सामने अपनी कुछ बातें शेयर कर सकूं। सभी सम्मानित शिक्षक गणों का भी धन्यवाद देता हूं और आप सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Thank you very much, Mr. Piyush Kumar Dubeji, the coach of the Indian hockey team. He was really a worthy chief guest on the occasion of the birthday celebration and the celebration of National Sports Day. Now, the program has almost come to an end. We are going to conclude it. Before concluding this National Sports Day celebrations, may I now request the respected Vice Principal, who is young, dynamic and a talented gentleman, Sir Kanaram Chaudhary, the Vice Principal of केंद्रीय विद्यालय गणेश खिंड, प्लीज। लाइव प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस को मना रहे हैं। हर साल हमारे देश में 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी और हमारी जनता के बीच में स्वस्थ रहने के लिए और शरीर को फिट रखने के लिए एक मैसेज आए और सभी अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को फोकस करें और अपने आप को फिट रखें। तो मेजर ध्यानचंद जी एक जाने माने हमारे देश के हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने कई सारे खिताब अपने नाम किए हैं और ओलंपिक गेम्स के अंदर वो 3 बार गोल्ड मेडल भी उन्होंने प्राप्त करके हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो हमारी जनता में और युवा पीढ़ी में खेलों के प्रति महत्व को इंगित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस को हमारी सरकार ने
लागू किया है कि इसको मनाया जाए और हमारे अधिक से अधिक हमारी जनता को, हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को स्वस्थ रखा जाए। कोरोना महामारी के कारण इस बार हम राष्ट्रीय खेल दिवस को हमारे विद्यालय के अंदर, जो पहले कई सारी प्रतियोगिता के माध्यम से हम करवाते थे, उसको तो नहीं करवा पाए, लेकिन हमें इसको ऑनलाइन संपन्न करवाने का मौका मिला। तो उसी के अंतर्गत हमारे विद्यालय के द्वारा एक छोटा सा ये प्रयास था और इसके अंदर हमारे विद्यालय ने कई सारी प्रतियोगिताएं भी रखी ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें सहभागिता कर सकें, भाग ले सकें। और इस प्रोग्राम को चालू करने से पहले हमारा फिट इंडिया रन का प्रोग्राम भी था, जिसमें बच्चे दौड़ते हुए अपने घर के आसपास कुछ छोटे वीडियो बनाकर और वो हमारे विद्यालय के अंदर भेज रहे थे और उनको हम लेकर हमारा पूरा डाटा संग्रहित कर रहे थे। बाकी इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो भी प्रतियोगिताएं रखी उसमें हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा, जिसके अंदर मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से संबंधित या किसी महान खिलाड़ी से संबंधित पोस्टर बच्चों से बनवाया गया। ये 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए प्रतियोगिता थी। उसके बाद में ऑनलाइन स्पोर्ट्स क्विज, ये भी हमारे विद्यालय ने इसकी भी एक व्यवस्था की, जो कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए थी और सभी क्लासेज के लिए क्विज था, वो अलग अलग था। इसके लिए सभी बच्चों को एक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया गया और जितने भी बच्चों ने इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया है उन सभी को हम ई जनरेटेड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भेजने जा रहे हैं, जो उनको उनकी ईमेल के ऊपर प्राप्त होगा। तो ये एक बड़ा काम है जो सभी बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए हम सर्टिफिकेट देकर कर रहे हैं। साथ में इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में श्री पीयूष कुमार जी दुबे वो हमारे साथ जुड़े। वो इंडियन हॉकी टीम के कोच हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में जुड़े हुए हैं फिलहाल वो, और एक जाने माने खिलाड़ी हैं और कई सारे खिताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो हमारे बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले और समाज के अंदर अच्छे खिलाड़ियों से हमारे बच्चे कुछ सीख लें, इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए दुबे साहब का हमने समय लिया। साथ में पीयूष कुमार जी दुबे साहब का हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। तो ये जो भी हमने ये प्रोग्राम रखा, इसका हमारा उद्देश्य ये था कि खेलों के प्रति बच्चों के अंदर अपने शरीर को फिट रखने के प्रति उनमें एक जागृति लाई जाए, उनको प्रेरित किया जाए ताकि हम स्वस्थ रहें और अपने जीवन को अच्छे से खुशी के साथ जी सकें। तो इसी मैसेज को करने के लिए हमने थोड़ा प्रयास किया छोटा सा। इस प्रोग्राम के अंदर हमारे शिक्षक साथियों का, हमारे शारीरिक शिक्षक संजय मुखर्जी जी का, मिस्टर आनंद जो हमारे शिक्षक हैं उनका, और बाकी भी कई सारे शिक्षकों का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारी प्राचार्य महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके उचित मार्गदर्शन और निर्देशन में ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो पाया, सफलता की सीढ़ी पे जा पाया। और अंत में आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आप सबको मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को खेलों के अंदर प्रेरित करें, उसमें भाग ले, वो ऐसी व्यवस्था करें और स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। स्वस्थ बच्चे होंगे तो ही हमारा देश भारत स्वस्थ बन पाएगा, ऐसी हमारी कामना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। I request all the viewers, wherever they are, to stand in attention to respect our national anthem. So I request to start the national anthem, please. जनगण